students, myself Manpreet Singh, and welcome to you all in Perfection Classes for English. And as you know, we are studying about passive voice, and we have done our tense part, modal part, and imperative section also in our previous lectures. To learn it, you must watch my previous videos before it. And today we will start our voice again, and in voice we will start our interrogative portion. It means interrogative sentences. Before to start interrogative sentence, you must need to know that what kind of this part in active and passive. Whenever we are talking about interrogative part in passive voice, then we must need to know that our first part is auxiliary part and our second part is WH questions. And what is auxiliary part? देखो auxiliary part के अंदर क्या होता है. auxiliary part में हमारा वो पार्ट काउंट किया जाता है जिसमें हम हमारी हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं. अब देखो हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में आपको जानकारी कैसे होनी चाहिए कि हमारे पास वी नो अबाउट ऑक्सिलरी पार्ट एज इन फॉर्म ऑफ टू बी, टू डू, टू हैव. वी जस्ट नीड टू नो these three auxiliary verbs, to be, to do and to have. And what are they? Before to read it, let's concentrate on this WH questions. Whenever we have our active part in WH part as what, who, whom, where, how, when, why, whose. Whenever we have active part which starts with what, who, whom, where, how, when, why, whose, then this portion called WH question. And whenever we are talking about auxiliary verb, let's see. Let's concentrate on auxiliary part and how can we find out that it is auxiliary to our to be, to do and to have. देखो जब भी हमने ऑक्सिलरी पार्ट को पहचानना है तो हमें मालूम होना चाहिए टू बी हमारी वर्ब्स कौन सी होती है. देखो जब भी हम टू बी के बारे में बात करते हैं, प्रेजेंट के अंदर इज, एम, आर, ठीक है. पास्ट के अंदर ये हो जाती है वॉज, वर. फ्यूचर के अंदर इसका कोई रोल नहीं रहता है एक्टिव टू पैसिव के अंदर, पर मैं फिर भी बता देता हूँ. विल बी और शैल बी. इसके अलावा ये चेंज होती है बीन या बीइंग में. दिस इज आवर टू बी पार्ट एंड वी नीड ओनली दीज टू थिंग्स, is, am, are and was, where it means present continuous and past continuous. And in to do part we always read do, does in present, did in past and will or shall in future. Do, does, did. Basically we just concentrate on this part. If we have to do, never say about this part. But according to do, it means according to indefinite part we just concentrate on it. And after our last but not the least, second the part is to have. And in to have we must read about have or has, had, will have and shall have. ये वो पार्ट है जो इंटरोगेटिव फॉर्म के अंदर एज एन ऑक्सिलरी पार्ट आता है वॉइस के अंदर.
तो आप इसको कंसंट्रेशन के साथ देखें कि आपके लिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब मैं आपको इसी में डायरेक्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो हमारे जितने भी इंट्रोगेटिव पोर्शंस होंगे जो कि ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होंगे वो इन्हीं से स्टार्ट होंगे, जिसमें इज एम आर हो सकता है, वॉज वर हो सकता है, डू डज डिड, विल शैल हो सकता है, हैज़ हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। ये वो पार्ट है जिससे हमारे सेंटेंसेस स्टार्ट होंगे। अब देखो हमने इससे पहले जब हमने टेंस से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स किए थे जिसमें हमने सिर्फ असर्टिव सेंटेंसेस को इंपॉर्टेंस दी थी, जिसमें एक पार्ट तो था एफर्मेटिव और दूसरा पार्ट था इसका नेगेटिव। अब तीसरा पार्ट जो होगा, देखो ये कंप्लीट असर्टिव पार्ट है। अब असर्टिव पार्ट के बाद में हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, इंट्रोगेटिव पार्ट। इंट्रोगेटिव पार्ट के अंदर क्या होता है, हमेशा क्वेश्चनिंग होती है। और क्वेश्चनिंग कैसे होती है, स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, इस स्ट्रक्चर के बेस पर हम और भी स्ट्रक्चर्स को प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ईजीली हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। देखो कैसे। अब जब भी हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव पार्ट की, सबसे पहले डिस्कस करते हैं टू बी वाले पार्ट की, जिसके अंदर क्या हो सकता है, इज एम आर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट plus verbs fourth form, and you must know verbs fourth form is verbs first form plus ing and plus object, and at the end there is a question mark. And whenever we are going to change this part into passive form, we must start from object, but before to object we must use our this part firstly, because this is an interrogative portion of voice. Is amar plus object plus being plus verbs third form plus by and subject. This is the part of interrogative portion, and that's how we can easily maintain it. Let's see how. So students, you can see in front of you three structures of interrogative section in passive voice. First is to do, second is to be, and third is to have. And how can they change according to this structure? Let's see. First is do does plus subject plus verbs first form plus object, and it is converted into passive form, that is amar plus object plus verbs third form plus by plus subject. And you must know that whenever we have any kind of plural subject, then we can use do. For example, I do, we do, they do. And whenever we have singular subject, then we are using does. And here the same rule is applied, that with I we are using am, with plural subjects and we are using are, and with singular is. Let's see here. If we have plural subjects, then we are using have. If we have singular subject, then we are using has. And one by one we will practice these structures. Let's see our first example for it. And our first example is, do machines make these utensils? Example, first is according to first structure, that is do machines make the utensils. देखो यूटेंसिल्स हम नॉर्मली कहते हैं बर्तनों के लिए, तो क्या मशीन्स बनाती हैं, क्या यूटेंसिल्स बनाती हैं? तो लेट्स सी हाउ इट कैन चेंज. वी मस्ट चूज फ्रॉम इज एम आर whenever we have do or does, and here the utensils are plural word, plural form, and according to plural we are using here are, the, are the utensils,
follow the structure are the utensils. Verbs third form make. Makes third form is made by. machines. इस तरह हम हमारे सेंटेंसेस को एक्टिव टू पैसिव के अंदर चेंज कर सकते हैं। एक बार ध्यान से देखें फिर से कि जब भी हमारे पास स्ट्रक्चर हो डू डज सब्जेक्ट वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव फॉर्म में, इज एम आर ऑब्जेक्ट वर्ब्स थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। अब देखो इस कंडीशन में क्या होता है, जब भी हमारे पास सेंटेंस क्या है, डू या डज से स्टार्ट होता है। देखो सेंटेंस क्या है, डू मशीन्स मेक द यूटेंसिल्स, तो हमने इसको कन्वर्ट करना है, डू डज चेंज होगा इज एम आर में, हमने ध्यान देना है हमारे ऑब्जेक्ट की तरफ, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अब देखो यहाँ पे यूटेंसिल्स प्लूरल फॉर्म में है, तो हम यहाँ पर वर्ब भी कौन सी यूज़ करेंगे, प्लूरल फॉर्म के लिए यूज़ करेंगे, जो है वो है आर द यूटेंसिल्स मेड, मेक की थर्ड फॉर्म है, बाय प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या था, मशीन्स। तो इसी तरह हमारा एक और एग्जांपल देखें, पहले ही स्ट्रक्चर का रहेगा, ये ध्यान रखें, पहले स्ट्रक्चर्स का। दूसरा एग्जांपल है, इजी सा लिखते हैं, डू यू रीड अ बुक। अब देखो इस एग्जांपल में क्या है, हमारे पास बुक दिया हुआ है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम किसका यूज करते हैं, इज एम आर में से इज का, इज अ बुक रीड रेड, इज अ बुक रेड बाय यू। इस तरह हम हमारे स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग हमारे सेंटेंसेस को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, पर आपको स्ट्रक्चर्स को भी फॉलो करना है, इस बात का ध्यान रखिए। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारे सेकंड रूल के बारे में। देखो सेकंड रूल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जब भी हमारे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है तो हमने बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है पैसिव के अंदर। अब इसका एग्जाम्पल देखें क्या है, भूलें नहीं कि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब और सिंगुलर के लिए सिंगुलर, और आई के साथ एम तो यूज़ होता ही है। तो अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड स्ट्रक्चर की। सेकंड स्ट्रक्चर है हमारा इज एम आर, तो सेंटेंस है हमारा इज शी राइटिंग अ बुक। देखो इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे हमारे रूल के अकॉर्डिंग ही। देखो कैसे चेंज होगा, इज और अ बुक इज सिंगुलर, तो हम यहाँ पर भी क्या यूज़ करेंगे, इसका ही यूज़ करेंगे, इज अ बुक being written by her। इस तरह हम हमारे सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, एक्टिव टू पैसिव के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर मैच करते हैं सेंटेंस के साथ। जब भी हमारे पास क्या दिया हो, ऑब्जेक्ट सिंगुलर दिया हो, तो वर्ब क्या लगती है, सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर ऑब्जेक्ट क्या था, बुक, उसके बाद में बीइंग प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एक एग्जांपल और देखें जो कि इसी में ही लिखा जाता है। देखो कैसे लिखा जाता है, वो टू प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म के सेंस में लिखा जाता है। स्ट्रक्चर नहीं लिखूंगा, सिर्फ एग्जांपल पर ध्यान देंगे। एग्जांपल है, ये एग्जांपल लिख देते हैं। देखो इज शी टू राइट अ बुक। अब जब भी हम इसको चेंज करेंगे तो इसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाएगा, इससे थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा वो ध्यान दें, कैसे रहेगा, इज़ अ बुक सेम है, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, टू प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, तो ये चेंज होगा टू बी रिटन बाय हर। इस तरह हम हमारे सेंटेंसेस को इजीली क्लियर और इजीली समझ सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर दो सेंटेंस लिखे, एक तो इस स्ट्रक्चर के बेस पर था और दूसरा टू प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ इज एम आर का। ये दोनों ही पैटर्न के अंदर हमारे सेंटेंसेस हमें कवर करने हैं और हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। अब बात करते हैं हम तीसरे स्ट्रक्चर की। तीसरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है हैज़ हैव, मतलब टू हैव वाला। अब देखो तीसरे स्ट्रक्चर के बारे में आपको
याद करवा दूं फिर से कि जब भी हमारे पास हैज़ हैव दिया हो तो हमने बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। क्यों करना है? यही वो एक पैटर्न है, यही वो एक वर्ड है जो एक्टिव टू पैसिव के अंदर डिफरेंस को क्लियर करता है। देखें, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 3 एग्जाम्पल है, हैज़ शी डन द वर्क। और देखो इसके अंदर मैंने वर्क को सिंगुलर ही लिया है तो अपने उसी फॉर्म के अंदर चलेंगे। हम सिंगुलर के लिए हमेशा किसका यूज़ करते हैं? हैज़ का। वर्क क्या है? सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, हैज़ द वर्क। इसके बाद में हमने यूज़ करना है बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, हैज़ द वर्क बीन डन बाय हर। इस तरह हमने पार्ट वाइज हमारे सेंटेंसेस को कवर अप करना है। आप देख सकते हैं आपके सामने 3 स्ट्रक्चर मैंने लिखे और उन 3 स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग ही हमने एग्जांपल्स को प्रैक्टिस किया। तो इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, देखो ये था प्रेजेंट पार्ट किसका? इंट्रोगेटिव सेक्शन का। इसके बाद में जो पार्ट आएगा वो होगा पास्ट। तो स्टूडेंट, पास्ट से रिलेटेड वॉइस के अंदर रीडिंग के लिए, स्टडी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, ताकि मैं उस चीज़ से मोटिवेट होकर आपके लिए और भी अच्छे से अच्छा मैटर अरेंज करूं, आपको अवेलेबल करवाऊं। थैंक यू।